போன பின்பும் வாசம் மட்டும் இன்னும் போகவில்லையே. யாரோ இவள் என் நந்தி பகல் சாய்ந்த பின்பும் உச்சி வெயில் இன்னும் ஓயவில்லையே. ஒரு பூவை போல அவள் தேகம் கண்டேன், நான் முன் போல் இல்லை வீழ்ந்து சாய்கிறேன். துளித்தேனை போல அவள் பேச்சை கேட்டேன், நான் என்னை விட்டு மிதக்கிறேன். யாரோ இவள் என் பக்கம் வந்து போன பின்பும் வாசம் மட்டும் இன்னும் போகவில்லையே. யாரோ இவள் என் நந்தி பகல் சாய்ந்த பின்பும் உச்சி வெயில் இன்னும் ஓயவில்லையே. ஒப்பனைகள் இல்லா நீ தொல்லை அழகு, கற்பனையை தாண்டி நீ கொல்லை அழகு. மின்மீனைகள் போல உன் பாதம் அழகு, வெண்ணிலவை காட்டிடும் தேகம் அழகு. மரப்பாச்சி போல மனசோடு கொஞ்சி போகும் உன் வெட்கம் தானே என்னை தட்டி தூக்குதே. கண்ணாடி போல உருவத்தை ஏந்தி நிற்கும் என் கண்ணு தானே உன்னை கட்டி காக்குதே. கையோட ரேகை எல்லாம் சேர்த்து வைக்கிறேன், நீ வந்து சேர பூவை கோர்த்து வைக்கிறேன். உன் பாதை பார்த்து பார்த்து தேடி நிற்கிறேன், உன்னாலே நானும் கெட்டு வாடி நிற்கிறேன். யாரோ இவள் என் பக்கம் வந்து போன பின்பும் வாசம் மட்டும் இன்னும் போகவில்லையே. யாரோ இவள் என் நந்தி பகல் சாய்ந்த பின்பும் உச்சி வெயில் இன்னும் ஓயவில்லையே. ஒரு பூவை போல அவள் தேகம் கண்டேன், நான் முன் போல் இல்லை வீழ்ந்து சாய்கிறேன். துளித்தேனை போல அவள் பேச்சை கேட்டேன், நான் என்னை விட்டு மிதக்கிறேன். யாரோ இவள் என் பக்கம் வந்து போன பின்பும் வாசம் மட்டும் இன்னும் போகவில்லையே. யாரோ இவள் என் நந்தி பகல் சாய்ந்த பின்பும் உச்சி வெயில் இன்னும் ஓயவில்லையே.
सब छोड़या अब मोही क्यों तरसा बिरहा बिथा लागी उर अंतर सो तुम आय बुझाओ अब छोड़त नहीं बड़े प्रभु जी अब छोड़त नहीं बड़े प्रभु जी हंस कर तुरंत बुलावो मीरा दासी जन्म जन्म की अंग से अंग लगाओ अंग से अंग लगाओ अंग से अंग लगाओ अंग से अंग लगाओ फूल मंगाओ हार बनाओ मालिन बन कर जाऊं क्या गुण ले समझाऊं राजधन के गुण ले समा जाऊं गला से हाथ
We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular democratic, republic and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political liberty, of thought, expression, belief, faith and worship, equality, of status, and of opportunity, and to promote among them all, fraternity assuring the dignity of the individual. and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, This 26th day of November 1949, do hereby adopt enact and give to ourselves this constitution. Jai Hind. आज 2 जून 2022 है और मेरी आवाज़ थोड़ी फट रही है जैसे कि लेकिन द शो मस्ट गो ऑन। आवाज़ मेरी सही नहीं है क्योंकि फ्लू एज यू कैन हियर, लेकिन आई वुड नॉट गिव अप द अपॉर्चुनिटी कि आपसे बात करूं, कुछ कहूं, कुछ सुनूं। और यही इस कार्यक्रम का नाम है कहते सुनते। फ्रीक्वेंसी है 89.3 FM एंड वी आर लाइव in Sydney on 89.3 FM and we are live on TuneIn throughout the world। अगर आप 2GLF ढूंढें 89.3 FM एंड फेसबुक पर लाइव हैं, यूट्यूब पर लाइव हैं एंड इसके बाद में भी अगर आप किसी कारणवश ये कार्यक्रम पूरा नहीं सुन सकते यूट्यूब पर तो यू कैन गो बैक लेटर ऑन एंड रीविजिट इट। तो उसमें आप फॉरवर्ड कर सकते हैं जो आपको सुनना है एंड ऑल दैट। मेरा नाम है मनबीर सिंह कोहली एंड पिछले हफ्ते थोड़ी म्यूज़िक इंडस्ट्री से थोड़ी सैड न्यूज़ है एंड वही सैड न्यूज़ मेरे साथ शेयर कर रही हैं आशा विजय राव जी। पूना में बैठी हैं, घरौंदा पूना में। एंड थैंक यू आशा फॉर जॉइनिंग अस। ये दूर से जब कोई लोग कनेक्ट होते हैं तो वो एक दोस्ती बनती है। और ऐसे ही पूना से मेरे साथ जुड़ा करते थे शेखर कुंडे एंड सो ही पास्ड अवे ऑन 26th of May एंड ऐसा लग रहा है आशा जी कि आप शेखर की जगह पे आ गई हैं पूना से। सो अगर आप उधर हैं तो प्लीज़ जुड़े रहिए एंड प्लीज़ कनेक्ट करिए। हाँ, आपको शायद ना पता हो कि शेखर कौन है। शेखर मेरे जवानी के दोस्त हैं थे एंड ही पास्ड अवे रिसेंटली इन पूना ऑन 26th of May एंड इट वाज वेरी सैड। लेकिन वो जब भी मैं प्रोग्राम शुरू करता था तो ही वुड बी देयर। तो आज आप आई हैं आशा जी पूना से तो मुझे लगा कि मेरा फिर से कनेक्शन बन गया पूना से। एंड श्रद्धांजलि कह रही हैं वो आशा जी, आशा विजय राव जी, टू सिंगर्स मिस्टर मूसेवाला एंड के। यस, सो इट्स अ वेरी सैड थिंग दैट हैज़ हैपेंड। मनमोहन सिंह सानी जलंधर में बैठे हैं, वो मुझे हेलो वीर जी कह रहे हैं। हेलो मनमोहन, कैसे हो? एंड ऑफ कोर्स नीरज नंदा जी जो कि मेलबर्न में साउथ एशिया टाइम से और इस कार्यक्रम का एक अटूट हिस्सा हैं। सो आशा जी इज़ सो आशा प्लीज स्टे कनेक्टेड। शेखर की जगह पे हो सकता है आप हमारे दोस्त बन जाएं पूना से। एंड सो पूना इज़ a place that has a special place in my heart and I can't forget Pune. So Pune is wonderful. So जैसे मैंने कहा कि सिद्धू मूसेवाला एक पंजाबी रैप सिंगर थे। उनकी लाइफ पूरी छोटी सी उम्र 28 में ही died. He was killed by unknown assailants last Sunday and उनके बहुत सारे फैंस थे। He was only 28 years old और ऐसा लगता है कि उन्होंने पिछले 5-6 साल में he achieved everything that a performer would like to achieve. नाम, पैसा, but unfortunately उसके साथ में उनकी दुश्मनी भी and वो दुश्मनी का शिकार हुए and we'll talk about that in detail with गुरप्रीत सिंह जो कि एक जर्नलिस्ट हैं कनाडा में और सिद्धू मूसेवाला he was in Canada और वहाँ पे उनका बहुत फेम था। इनफैक्ट ऑस्ट्रेलिया में भी जो पंजाबी म्यूज़िक सुनने वाले हैं, जो यंग लोग हैं who are born here, जिनका इंडिया से कोई ताल्लुक नहीं, बट दे लव्ड हिज म्यूज़िक एंड बिकॉज पंजाबी म्यूज़िक आजकल इज़ लीडिंग जो ये डांस म्यूज़िक या ऑल दैट। सो उसमें रैप में इट इज़ एंड ही प्लेड अ ग्रेट पार्ट। लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं लाइक आई डू। आई डेंट लाइक हिज म्यूज़िक बिकॉज आई डोंट लाइक रैप म्यूज़िक, लेकिन उनकी म्यूज़िक में
गन कल्चर ऐसे कह रहे हैं कि भाई गन कल्चर वो encourage कर रहे थे, एंड ऑफ कोर्स समथिंग मस्ट हैव गॉन रॉन्ग, सो वी डोंट नो क्या है. मुझे माइक बंद करना पड़ता है खांसने के लिए. संदीप खोपकर हमारे दोस्त, एंड संदीप खोपकर संदीप खोपकर इज़ डूइंग हिज ओन शो, और आज मैं उसके बारे में बात करूंगा. बट उन्होंने के लिए एक गाना रिकॉर्ड किया है, एंड ही आई वुड लव टू प्ले इट, लेकिन फेसबुक क्या करता है कि जो अगर मैं कोई गाने प्ले करूं जो कि कॉपीराइट का प्रॉब्लम आता है, तो दे शट डाउन माई स्ट्रीम. So unfortunately, I won't be able to play that, even if I would love to watch it, to play it, Sandeep. So I'm very sorry. But yes, Sandeep का शो होने वाला है. So अगर आप लोगों ने टिकटें नहीं ली हैं वहाँ की, तो ज़रूर जाइएगा. And Sandeep का शो, मैं I'm just going to put that on the screen. And yeah, so if you watch that, you will come to know. And I'll give you more details as we go. And of course, Suman Mathur has also joined us. And I met Suman last week, Harman Foundation के एक program पे. So it was great, and she's a great yodeler, किशोर कुमार के गाने. And so thank you Suman, and thank you for staying connected. But a very sad day. के जो कि एक हिंदी फिल्मों के सिंगर थे, at the age of 53 he died in Calcutta on Tuesday. परसों उनकी मौत हो गई. It's very sad. Suddenly he just died. उन्होंने कोई परफॉर्मेंस दिया और उसके बाद में ही जस्ट पास्ट अवे. कुछ उनकी तबीयत ख़राब थी एट अ कॉन्सर्ट इन कैलकाटा, एंड या जिसको कोलकाता कहते हैं आजकल. तो ही वॉज बॉर्न इन दिल्ली इन 1968, एंड ही रिकॉर्डेड सॉन्ग्स इन हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी एंड बंगाली, और बहुत सारी दूसरी लैंग्वेजेस में. एंड उन्होंने जिंगल्स के साथ अपना काम शुरू किया, और उनका नाम असल में के कृष्ण कुमार कुन्नत, एंड सो उनको शॉर्ट फॉर्म से लोग प्यार से के कहा करते थे. एंड उनके बहुत सारे खूबसूरत गीत थे. एंड टू इमेजिन कि ही वॉज 52, एंड अगर आप उनकी आवाज़ सुने तो ऐसे लगेगा कि ये 20-year-old इज सिंगिंग. सो एंड ही ब्रॉट अ लॉट ऑफ एनर्जी टू हिज कॉन्सर्ट. सो रेस्ट इन पीस के, एंड आई एम श्योर दैट देयर विल बी अ लॉट ऑफ पीपल हु विल बी वेरी वेरी सैड एट दिस पासिंग. और कौन जुड़ा हमारे साथ में? या तो आशा जी कह रही कि ज़रूर जुड़ेंगी हमारे साथ हमेशा. सो थैंक यू. एंड संदीप जी हैव अ हाउसफुल. सो ऑब्वियसली, सो ये सब है आज कार्यक्रम में. एज आई सेड, सिद्धू मूसेवाला को वी विल ट्राई टू फाइंड आउट कि क्या हुआ, और अभी तक तो डिटेल्स नहीं है ज़्यादा. बट आई स्पोक टू गुरप्रीत सिंह, जो एक जर्नलिस्ट हैं कनाडा में, तो उनके साथ मैंने बात रिकॉर्ड की है, तो आई प्ले दैट. देन ऑफ कोर्स ढंग की बात होगी, और आज ढंग की बात का मौजू बड़ा अजीब है. इट्स वेरी वियर्ड. और आज का ढंग की बात का टॉपिक है द पावर ऑफ सैड सॉन्ग्स, कि हम लोग दुखी गाने क्यों सुनते हैं. या सो वो जो किशोर कुमार के दर्द भरे गीत, या मोहम्मद रफ़ी के दर्द भरे गीत, या लता मंगेशकर के, वाई डू वी enjoy that. And of course, Neeraj Nanda ji होंगे from South Asia Times. He'll talk about Indian and Australian news. And फिर बाद में Mallika Bhadra भी आएंगी, जो कि she's talking about a weird topic. Is dancing a bad profession or passion for a South Asian woman of marriageable age? So बताइएगा. और यहाँ पर जो WhatsApp का नंबर है वो है 0449 004 053 0449 004 053. मेरा नाम है मनबीर सिंह कोहली. ये कार्यक्रम हर थर्सडे नाइट को 8 से लेकर 10 बजे तक आता है ऑन 89.3 FM. एंड आज इस कार्यक्रम का 186th एपिसोड है. 186. सो दोज आर द नंबर ऑफ शोज दैट वी हैव डन. एंड या सो 186 shows. And Asha ji keh rahi hai, too young to die, your music will remain with us. So I presume she's talking about both Sidhu Moosewalla and KK. So दोस्तों 0449 004 053 व्हाट्सएप का नंबर है. अगर आप किसी भी विषय पर जुड़ना चाहें, कुछ बताना चाहें, कुछ कहना चाहें, तो बताइएगा. एंड I'll play some music. ये म्यूज़िक मुझे फेसबुक देता है, सो उसमें कॉपीराइट का कोई प्रॉब्लम नहीं आता है. So let me just play that, and then I'll come back with Gurpreet Singh in Canada.
छोड़या अब मोही क्यों तरसाओ बिरहा बिथा लागी उर अंतर सो तुम आय बुझाओ अब छोड़त नहीं बड़े प्रभु जी अब छोड़त नहीं बड़े प्रभु जी हंस कर तुरंत बुलावो मीरा दासी जन्म जन्म की अंग से अंग लगाओ अंग से अंग लगाओ अंग से अंग लगाओ अंग से अंग लगाओ फूल मंगाओ हार बनाओ मालिन बन कर जाऊं क्या गुण ले समझाऊं राजधन के गुण ले समा जाऊं गला सैली हाथ सुमिरनी जपत जपत घर जाऊं मेरा करे प्रभु गिरधर नागर बैठत हरि गुण गाऊं गला सैली हाथ सुमिरनी जपत जपत घर जाऊं मेरा करे प्रभु गिरधर नागर बैठत हरि गुण गाऊं अब छोड़त नहीं बड़े प्रभु जी अब छोड़त नहीं बड़े प्रभु जी हंस कर तुरंत बुलावो मीरा दासी जन्म जन्म की अंग से अंग लगाओ अंग से अंग लगाओ अंग से अंग लगाओ अंग से अंग लगाओ सो दोस्तों आप सुन रहे हैं देख रहे हैं कहते सुनते मेरा नाम है मनबीर सिंह कोहली और मेरे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं लाइव ऑन फेसबुक एंड देयर वर सम पीपल ऑन यूट्यूब लेकिन मुझे नहीं पता कि कौन था क्योंकि वो देख के भाग गए लेकिन प्लीज़ कम बैक ऑन यूट्यूब तो ये कार्यक्रम यूट्यूब पर भी लाइव है एंड यूट्यूब पर अगर आप जाएं कहते सुनते ढूंढने तो आपको मिल जाएगा ये कार्यक्रम वहाँ पर एंड सो आशा जी कह रही कि आई केम टू नो अबाउट योर शो फ्रॉम मिस बिजिंदर of Asha Foundation. Yes, Miss Bijinder Duggal. Yes, and she's quite a character. Bijinder जी बहुत खूबसूरत पर्सनैलिटी हैं और बहुत मेहनत करती हैं and she does a lot of contribution to charity work in Sydney and बहुत जगहों पर. So yeah, जैसे मैंने कहा कि सिद्धू मूसेवाला की बहुत ट्रेजिक सर्कमस्टेंसेस में मौत हो गई. He was murdered in broad daylight और उनका जैसे जिस्म जो है कि छलनी कर दिया अलग अलग टाइप की गोलियों से. उन्होंने बड़ी चैन से गोलियां चलाई जो असेलेंट्स थे. इट्स वेरी सैड कि भाई दिन दहाड़े इतना बड़ा क्राइम, इतना फेमस आदमी जिसका सारी दुनिया जानती थी,
he could be murdered in broad daylight in Punjab, and it's a very sad thing. And of course, जो वहाँ की सरकार है उसके बारे में बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे हैं कि जो भगवंत मान या आप पार्टी की जो सरकार है उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं. एंड आई डोंट हैव एन ओपिनियन ऑन दैट कि भाई क्रिटिसिज्म का वो इज इट राइट टू क्रिटिसाइज देम और नॉट. आई डोंट नो, वो आप जो डिसाइड करेंगे वो आप मुझे बताइए. लेकिन ये जो मैंने इंटरव्यू रिकॉर्ड किया गुरप्रीत सिंह के साथ कनाडा से, सो प्लीज़ सुनिए उसको. he'll give you some insights into Sidhu Moosewalla's life and times. So दोस्तों, जैसे आप सब ने सुना होगा कि सिद्धू मूसेवाला पंजाबी सिंगर एंड रैपर, उनकी हाल ही में पिछले संडे को मानसा डिस्ट्रिक्ट में मौत हो गई because he was killed by some assailants. He was 28 years old. इनका असली नाम था शुभदीप सिंह सिद्धू, but he was better known by his stage name Sidhu Moosewalla. And 2017 में उनका जो म्यूजिक था, जो कि पंजाबी हिप हॉप और रैप के sort of genre से मशहूर था, वहां से उनकी जर्नी शुरू हुई. एंड ही वाज अ वेरी बिग हिट इन कंट्रीज लाइक द यूके, कनाडा एंड इवन ऑस्ट्रेलिया, जहां पर जो यंग पंजाबी यूथ है वो उनको फॉलो किया करते थे बहुत क्लोजली. उनके बहुत सारे जो गीत थे वो गन कल्चर को प्रमोट करते थे. सारे जो गीत थे उनके, मोस्ट ऑफ देम हैड एन इंग्लिश टाइटल, लेकिन सारे गीत पंजाबी में हुआ करते थे. और उनके जो म्यूजिक वीडियोस थे और जो गाने थे, it used to promote a macho culture. And 2018 में he made it to Canada's Billboard albums chart. He was a very controversial figure because of his lyrical style. And in 2020, जो Indian Arms Act के under, police charged him for promoting gun culture in one of his songs. पिछले महीने उन्होंने अपना गाना रिलीज किया था, The Last Ride, which was about Tupac and his death. And he joined Sidhu Moosewalla joined the Indian Congress Party last year, and he tried to fight elections for the Punjab state elections, but he was unsuccessful in that. और I think Saturday को भगवंत मान, जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर है belonging to the AAP party, removed 450 people जिनको प्रोटेक्शन दिया जा रहा था, पुलिस प्रोटेक्शन था, और उसमें से एक नाम सिद्धू मूसेवाला का भी था. जिस दिन ये अनाउंस हुआ उसके अगले दिन सिद्धू मूसेवाला was unfortunately killed in an attack while traveling through the streets in district Mansa in Punjab. तो मेरे साथ में गुरप्रीत सिंह हैं. गुरप्रीत सिंह is a journalist from Canada. तो I welcome him. गुरप्रीत, कैसे हो? I'm doing fine, Manbir. Good. तो Gurpreet is a journalist. He's a freelance journalist, and he's done a lot of work, and we've spoken to him earlier. But Gurpreet, the reason I want to speak to you is because you are based in Canada. और Canada में सिद्धू मूसेवाला की बहुत undying popularity है. He lived in Canada for a few years. He was a student there. He was trying to become a permanent resident. So, but वो नहीं हुआ उनका, I think. So what is the situation there? लोगों में कैसी anguish है वहाँ पर? Certainly, the people are outraged in Canada. He had a huge following in this country. There is no question about it. And one thing I really want to mention here today, the province newspaper is published from Vancouver. It's a major English daily. It carried a front cover. Wow. With his picture and a huge headline about his being shot to death. You can imagine how popular is he. CBC covered it, Global covered it. I'm talking about the mainstream channels. It gave a huge coverage to his death. And a few days ago, there was a story that appeared in Vancouver Sun, according to which he was scheduled to come here in Vancouver next month to perform at a big concert. And that event was under review because of security concerns. So he has always been a controversial figure. I mean, even in the past, he was supposed to perform in Surrey, and there was an opposition from within the South Asian community. I mean, he had a huge following in the South Asian community, but he also had many critics.
So they opposed that event because, according to them, he promoted gun culture. So Sidhu Moosewalla remained very popular till the very end. And after his death, we have seen people organizing vigils, demos, and the way the media is covering all that, it shows he remains very popular among the youngsters. So it's a very unfortunate life, full of fame, everything that somebody could ask for at the age of 28. Absolutely. He had it. Fame, infamy, money, popularity, sara kuch tha. And of course, he was very talented. Of course, I didn't follow him, but for people who listen to his songs, they say his lyrics were sharp. They were, very pointed. They said what he wanted to say, and it united the youth. And it obviously, a lot of rap, agar main black American rap se shuru karu, it's all about anger and the ghetto style. And uske andar bhi violence and challenging authority and all that is there. So he was trying to maybe become that stereotypical rapper, not like Baba Sehgal, who was the goody rapper in India when the rap scene came in. But I think Sidhu Moosewalla, he embodied how rap is seen in the Western world, and he played that part. So he had everything going, but to be gunned down at the age of 28, and a self-fulfilling prophecy. Unke gaano mein bahut tha ye ki bhai, he might be killed, and he was always at risk. So what do you think? What is your take and listening to what is happening in Canada? Wahan pe kya bol rahe hain log? There are a number of conspiracy theories going on. Some people feel that because he was very popular and he was in a way threatened the livelihood of many other singers who have not been able to make a mark for themselves like him. So maybe they are behind it. Maybe it's a political killing, who knows, because he had joined Congress party recently, and this name of Middu Khera, which appeared in the press, the youth Akali leader who was killed last year. And there are allegations that some of the people involved were close to him. So if this whole incident has any political undertone, I won't be knowing. But in the meantime, a Canada-based person, Goldie Brat, has claimed his responsibility, which is very surprising because normally any political assassination by a militant group is where we see those kind of responsibilities being taken to score a point. And most of the time, they don't even bother about getting killed themselves or even going after the police or the state. In this particular case, it was a targeted hit, as it seems to be. And still somebody is claiming responsibility, although it doesn't make any sense to me because the person who is claiming the responsibility is not making any kind of political statement here. Talking about just a personal vendetta, which is something surprising, right? Normally, a jihadi or a Khalistani group or any Maoist organization would claim that kind of responsibility to make a political statement. So I'm really surprised and baffled by this whole scenario. So I cannot make sense of it. But what I can say, definitely, this calls for a deep inquiry. The good thing is that High Court has now intervened. They want to know from Bhagwant Mann that under what circumstances the security was proved. And under what circumstances this was made public. Because it's an unprofessional conduct. You cannot make public this kind of information because it put everybody at risk. Correct. Those are some questions we need to ask. But ये gangster वाली बात जो आप कर रहे हैं, it is also possible कि भाई the gangsters want to be seen as heavyweights. Absolutely. And to gain some credibility, even if they have done it or not, but they want to be known to have done it. क्योंकि उनका तो दबदबा is like almost like terrorists. Because a lot of gangsters work on fear. So by doing this, maybe they're instilling fears in other possible victims. But there's a difference between the two scenarios. There are people out there who are trying to, what we should defend Bhagwant Mann and his government by saying, you know what, Z+ security couldn't save Bhayan Singh. So how can you say that Sidhu Moosewalla got killed because of the pruning of security cover, which makes no sense to me. Because these two scenarios are completely different.
political assassination is a situation where militant group which is high on its conviction, Mm. they can go to any depth. As I mentioned earlier, they are even ready to kill themselves. I mean, they don't worry about their own lives. Mm. Leave alone the question of worrying about the lives of others on the street. That's a completely different scenario. So they are going out there with high conviction. Mhm. They don't care about getting into some kind of conflict with the state, directly with the state. With gangsters, mostly what appears to be the case, they would try to avoid any kind of direct conflict with the state or the police, Hmm. because that's the last thing they would like to do. Okay. As we have seen in the case of political prisoners in India right now, number of them are sitting in jails. Hmm. They won't normally get bail or any kind of empathy, even in a situation of pandemic. On the contrary, the people who are involved in crime, they get bail pretty soon, Hmm. because most of the time they get some kind of political patronage. So that's a different scenario. The people who are on the wrong side of the law, they are generally in the good books of the police because they don't mess up with them. Mm. But with the political movements, it's a different scenario altogether. There is another angle which is about drugs, because there is a big network of drug supply in Punjab. I mean, like in other parts of India, but I think Punjab has been quite at the forefront. There have been huge shipments caught at Kandla, 20,000 crore rupees last year, and a lot of that was seen in Punjab. Punjab mein bhi raids hue. So, and obviously, if there is drugs involved, there is police, there is politicians, there are gangs involved. So, this could be possibly part of that. We don't know, but there are as many theories as there are people, I think, Ajkal, with Sidhu Moosewalla. So you think Bhagwant Mann should have been more careful, and he should have not removed? And do you think the responsibility lies at his feet? Absolutely, there is no question about it. I mean, the least he could have done was, if he wanted to prune the security, wanted to withdraw all the security cover given to these people, so-called VIP, which is fine. I mean, you don't have to make it public. When you make it public, you put their lives under risk, and that's what happened with Sidhu Moosewalla. Let's face it. I mean, that's what happened. So Bhagwant Mann had every right to cut down the security cover. But again, the question is that if he's going that far, why he is providing security cover to his family, and why he's taking security cover for himself? It really represents the Aam Aadmi, so-called Aam Aadmi. Correct. And he's making that kind of, he's trying to make a political statement out of it. He's trying to get some kind of political mileage out of that. It was a totally professional job. It was up to the police to find out if there is some threat perception against the individuals who have been given security cover. Only after a due diligence assessment, they should have decided how many people should be, how many people actually need the security cover and how many actually they don't need it at all. They should have figured out, doing a thorough professional research or homework. That part is missing somewhere. Bhagwant Mann wanted to make a political point, he made it. And then he went out of the way to make this all public. That these 400 plus individuals, they won't have security cover anymore. The people who have been eyeing for an opportunity to eliminate Sidhu Moosewalla, how can we be sure that they were not keeping an eye on all this? I mean, apart from gun culture and the macho image, what was Sidhu Moosewalla's politics? Because I heard he was aligned to the Khalistanis. And do you think with this killing, जिसको आजकल बड़ा commonly बोलते narrative is being spun around that Punjab is returning to the days of terrorism, it's a lawless state? This was sort of fueled also by the Prime Minister Narendra Modi when he went to Punjab and he says, "Oh, मैं तो बाल बचा वहां पर," when his cavalcade was stopped on the bridge. So do you think it is now fueling that image problem with Punjab and Punjab's youths that you are Khalistanis, and somehow this is serving somebody's benefit? There's a good possibility a third agency is involved in Punjab at this moment. They're trying to create an atmosphere which actually suits the agenda of the people in power in New Delhi, who want to brand Punjab in a certain way.
to pursue their agenda. So even the right-wing trolls today, they are saying, they're calling him a Khalistani dog, and they are celebrating his death, which is very shameful, very awful. So Sidhu Moosewalla himself was a very contradictory figure as far as politics is concerned. At one point of time, he was very close to the DGP. He was very close to the police. He actually came out in support of that ASI whose wrist was cut by those Nihangs. So he actually came out in support of that police officer. Secondly, he recently joined Congress, and we joined Congress. Number of Khalistanis came after him, and they mocked his image with Indira Gandhi's on social media to mock him. And at the same time, he used to revere Pindramwale. Now, Pindramwale was again you cannot outrightly call him a Khalistani because he never asked for it, right? And he was considered martyr by SGPC at Akali Dal, who had been in good books of the BJP until yesterday. There are too many contradictions in all this. And recently we were hearing that because Sangrur by-election coming up now, and Bhagwant Mann has now become an MLA, so Simranjit Singh Mann was trying to rope in Sidhu Moosewalla. So all in all, he was a popular figure and everybody wanted to drag him into their camp. So his contradictions are there, are very open. Based on that, you cannot 100% call him one thing or the other. It's a very complex situation. It's a complex, a dirty situation and a risky situation because if this is how a celebrity can be just gunned down in daylight, what happens to the common people? And that is a worry. Thank you, Gurpreet. Thank you for your time and thank you for providing us with an insight. This is not an easy time for Punjab or the Punjabis, and I hope things return to normal. Thank you for your time, Gurpreet. Thank you for your interest and also giving me the opportunity. I appreciate that. Take care. Thank you. Bye. So दोस्तों ये थी chat with Gurpreet Singh from Canada, Vancouver, और मेरे साथ अभी जुड़े हैं पंकज टंगरी जी. पंकज is becoming a friend soon. और होता है ना, थोड़ी सी एक दो बार मिलो तो भी यू फील कि हाँ इससे बंदे से मैं कनेक्ट कर सकता हूँ. तो सिडनी कनेक्शंस उनका एक फेसबुक का ग्रुप है, CONNEXIONS. तो वहाँ पे जाइए. इट्स अ नाइस कम्युनिटी दैट ही इज ट्राइंग टू बिल्ड. एंड हम लोग पिछले थोड़े हफ्ते पहले मिले थे हम लोग एज अ ग्रुप, एंड इट वाज नाइस. एंड पंकज ब्रिंग्स अ वेरी नाइस ऑथेंटिक फील to his personality, and it was very good. So पंकज टंगरी जी अगर आप देख रहे हैं तो मेरा सलाम आपको. एंड ऑफ कोर्स परमिंदर कोहली मेरी एक सपोर्टर हैं बहुत तगड़ी, वो भी देख रही हैं. एंड थैंक यू फॉर ऑल दैट. 0449 004 053 0449 004 053 व्हाट्सएप का नंबर है. अगर आप किसी भी विषय पर बात करना चाहें तो मुझे यहाँ पर एक व्हाट्सएप का मैसेज भेजें. अगर आप श्रद्धांजलि देना चाहते हैं सिद्धू मूसेवाले को या के को, या अगर आपको ज़िंदगी के किसी भी विषय पर बात करनी है तो करिएगा, बताइए. एंड आई विल कॉल यू एंड विल पुट यू ऑन एयर. और मेरी आवाज़ तो आप सुन ही रहे हैं कि बड़ी क्लासिक बनी हुई है, लेकिन फिर भी द शो हैज़ टू गो ऑन. लेट मी सी इफ़ यू लाइक दिस सॉन्ग. ये पता नहीं मैंने पहले प्ले किया है कि नहीं, बट लेट मी गिव इट अ गो. और अमोलदीप भी देख रहे हैं. अमोलदीप, वेलकम. मिलने का भी दिल
छोड़या अब मोही क्यों तरसाओ बिरहा बिठा लागी उर अंतर सो तुम आय बुझाओ अब छोड़त नहीं बड़े प्रभु जी अब छोड़त नहीं बड़े प्रभु जी हंस कर तुरंत बुलावो मीरा दासी जन्म जन्म की अंग से अंग लगाओ अंग से अंग लगाओ अंग से अंग लगाओ अंग से अंग लगाओ सो दोस्तों आप सुन रहे हैं देख रहे हैं कहते सुनते मेरा नाम अभी भी मनबीर सिंह कोहली है। चाहे आवाज़ मेरी आज थोड़ी नासाज है लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो आपको बता दूं कि सिडनी में क्या क्या होने वाला है। सिडनी में रिमेम्बरिंग यश चोपड़ा हो रहा है फ्राइडे 3 जून को, यानी कि कल 3 जून को फ्राइडे कल ये शो हो रहा है 14 पेरेंट स्ट्रीट कासल हिल पर। और जानकारी के लिए आप मंजू मित्तल जी को फ़ोन कर सकती हैं 042-520-4364 042-520-4364। एंड कभी कभी मेरे दिल में इस कार्यक्रम का नाम है रिमेम्बरिंग यश चोपड़ा। तो यश चोपड़ा के गीत दिलीप भावे, आशुतोष जैन, रुचा लांगा, हैना सचदेवा एंड रूहानी टिल्लो इनकी तरफ से। सो इट शुड बी अ ग्रेट शो। कल होने वाला है कासल हिल में। और ये संदीप खोपकर जी का शो, उसके बारे में बता दूं, ये संडे को हो रहा है 5 जून को, संडे 5 जून अगेन एट 14 पेरेंट स्ट्रीट पाइनियर थिएटर में। एंड संदीप खोपकर कर रहे हैं एंड डायरेक्शन बाय हर्षला वैद्या। एंड संदीप खोपकर, हर्षला वैद्या, किरण गोडबोले, अंजुला काटे एंड असीम परब के गीत होंगे। अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप हर्षला को फ़ोन कर सकते हैं 0419-627-822 0419-627-822। सो संदीप खोपकर जी जो कि SP बालासुब्रमण्यम की आवाज़ है, लेकिन ही विल बी सिंगिंग अ मिक्स्ड बैग ऑफ सॉन्ग्स। और एक और चैरिटेबल इवेंट आपको बता दूं, अ ट्रिब्यूट टू द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, लता मंगेशकर सुर संगम 2022। ये 12 जून को हो रहा है 5 PM ऑनवर्ड्स एट बोमन हॉल, ब्लैक टाउन। एंड इट्स अ कॉन्सर्ट प्रोड्यूस बाय अलंकार प्रियदर्शी। एंड इसमें अलंकार, शिवांगी, आशीष, अनोला, शीर्षा, प्रगति, विनोद, सीमा, यजदी जैसे मशहूर सिंगर्स हैं सिडनी के। एंड बाय डूइंग दिस ये लोकल टैलेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। एंड दिस इज सपोर्टेड बाय मल्टीकल्चरल न्यू साउथ वेल्स। एंड अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो यू कैन कॉन्टैक्ट 0412-786-569 0412-786-569. So these are some of the shows that are happening this week and the next. Sorry. So ढंग की बात का अब समय होता है। ढंग की बात, ऐसी आवाज़ में आपको ढंग की बात सुनाऊंगा। और मुझे लगा कि ऐसी आवाज़ में ही आज का टॉपिक बड़ा इम्पॉर्टेंट है भैया। आज का टॉपिक इसी आवाज़ में बोला जा सकता है। सो हियर वी गो, द पावर ऑफ सैड सॉन्ग्स। What do these songs have in common? ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है? हम थे जिनके सहारे, वो हुए ना हमारे। जग सुना सुना लागे, या किसका रास्ता देखे। याद है ना देवानंद की फिल्म गैम्बलर का गीत। सो इन सब में कॉमन क्या है? वेल, एज यू गेस्ड इट, all of them are sad songs and were hits. We listen to music as it gives us happiness. After all, why should we listen to sad songs that instead make us feel sad? If you ask someone the list of personal favorite 10 top songs, I'm sure there would be some sad songs in that list too. What is this fascination with sad songs that instead of bringing us a smile to our face, they bring tears to our eyes? There are times when we listen to a sad song and feel awed
that the lyrics express the exact emotion that we feel. When such lyrics help us identify with our own emotions, we feel a sense of connection towards it. This connection makes us want to re-experience those emotions. Sadness is a primary emotion that is expressed and perceived equally across cultures. Sadness is generally seen as a negative emotion, but we tend to find it pleasurable in an aesthetic context, which is known as the paradox of enjoying sad music. Several studies have shown that many people do choose to listen to sad music when they are feeling down. And the desire to listen to sad music, as opposed to music with a different expressive character, is strongest directly after the onset of a negative mood. To understand this, I read an article in Psychology Today and learned that sad songs are very useful to us. The article by Shahram Hashmat says that there is some evidence that pleasure in response to sad music is related to a combination of the following factors. So he lists the following factors. First, nostalgia. Sad music is a powerful trigger for nostalgic memories of old times. Such revisiting of nostalgic memories may enhance our mood, especially if the memories are related to pivotal and meaningful moments in life. For example, high school, college. And I remember कि अगर किशोर कुमार के कोई गीत हो तो मुझे अपने कॉलेज के दिन याद आते हैं क्योंकि एज फ्रेंड्स हम लोग बैठ के अंताक्षरी जैसे एक गाने के बाद दूसरा बेसुरी आवाज़ में ऊंचा ऊंचा गाया करते थे. Yeah, so it brings back nostalgia. Second, vicarious emotion. Vicarious means कि आप किसी और की moment अपने through enjoy करते हैं. Music helps to channel one's frustration or purge negative emotions like anger and sadness. It's cathartic. When we listen to sad music or watch a sad film, we are disconnected from any real threat or danger that the music represents. When we cry at the beauty of sad music, we experience a profound aspect of our emotional selves. Third, prolactin. At the biological level, sad music is linked to the hormone prolactin, which is associated with crying and helps to curb grief. Sad music tricks the brain into releasing prolactin. Prolactin produces feelings of calmness to counteract mental pain. Fourth, empathy. Empathy plays a significant role in the enjoyment of sad music. Empathy can be broadly defined as a process by which we can come to understand and feel what another person is experiencing. Expressions of sadness and grief are likely to rouse support and help in others. Similarly, listening to sad music may evoke an empathic concern in those with a strong disposition to empathy. पांचवा, mood regulation. अगर आप म्यूजिक सुने sad music तो उससे आपका मूड भी रेगुलेट होता है. Sad music takes us away from distressing situations and focuses instead on the beauty of the music. Further, lyrics that you identify with the listener's personal experience can give voice to feelings or experiences that one might not be able to express oneself. तो जब भी आप किसी लो मूड में हो और आप कोई गीत सुने तो वो अगर आपकी जो इमोशंस हैं उसको दर्शा पाता है तो आपका एक इमीडिएटली उसके साथ कनेक्शन बन जाता है. सिक्स्थ, जो सैड सॉन्ग्स हैं दे आर लाइक एन इमेजिनरी फ्रेंड. Music has the ability to provide company and comfort. People tend to listen to sad music more often when they are in emotional distress or feeling lonely, or when they are in introspective moods. Sad music can be experienced as an imaginary friend who provides support and empathy after the experience of a social loss. The listener enjoys the mere presence of a virtual person represented by the music who is in the same mood and can help cope with sad feelings. Well, so don't feel guilty. Listen to sad songs and have a great time. So this was from that article in Psychology Today, and I hope आपको भी इसके अंदर कुछ अपनी बातें नजर आई हो. दोस्तों, आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं कहते सुनते. मेरा नाम है मनबीर सिंह कोहली, एंड लेट्स सी अगर आप लोगों ने इसका जवाब दिया है तो तो मेरा क्वेश्चन था, व्हाट आर सम ऑफ योर फेवरेट सैड सॉन्ग्स. और आशा जी पूना से कह रही हैं, आज गलो मुस्कुरा लो जीवन की डोर बड़ी कमज़ोर. किस फिल्म का है मुझे याद नहीं आ रहा है गीत, मे बी. सो बताइएगा, व्हाट आर सम ऑफ योर फेवरेट सैड सॉन्ग्स.
सो दोस्तों, मैं इस फटी हुई आवाज़ में आपके साथ कनेक्ट हो रहा हूँ, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं आपसे कनेक्शन हमेशा बना के रखना चाहता हूँ. और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, ये छोटा सा हमारा एक बुटीक प्रोग्राम है. वी आर नॉट नंबर वन इन सिडनी और एनीवेयर. वी आर, but we are good content. I'm proud of the content that is produced in the show. That's all I'm proud of. We are not number one, definitely. There are lots of other shows that are doing something. And Plakil, Korean is watching. Plakil, kaise ho bhaiya? And Plakil is another friend who's watching in Mumbai. And Suman Mathur keh rahi hai, such songs have the power to evoke deeper emotions. Absolutely true. जो ये sad songs हैं, ये हमारे emotions जो हैं, अंदर के जो emotions हैं, उनको छेड़ पाते हैं in ways that a lot of other expressions cannot. So yeah, thank you Suman for that good comment. What else? Great ढंग की बात, love sad song. सुमन माथुर जी कह रही हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सुमन जी. एंड या सो ढंग की बात में मैं कई बार ऊट पटांग से टॉपिक्स पे बात करता हूँ, नॉट द कॉमन वंस. एंड आई थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्टे कनेक्टेड एंड टू टॉक अबाउट दीज थिंग्स, क्योंकि और कहाँ पे सुनेंगे ना ये सब आप बातें. हाँ, अनलेस आप खुद वो साइकोलॉजी टुडे का आर्टिकल पढ़ लें, देन यू डोंट नीड ढंग की बात. लेकिन आई थिंक दैट इज़ वाई ढंग की बात इज़ नीडेड, ताकि आई कैन शेयर जो मैंने पढ़ा हो या एक्सपीरियंस करा हो. आप सुन रहे हैं कहते सुनते. मेरा नाम मनबीर सिंह कोहली है. ये कार्यक्रम हर थर्सडे नाइट को आता है सिडनी से 89.3 FM 2GLF से. लिवरपूल में हमारा रेडियो स्टेशन है और वहाँ से हम लाइव ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं सिडनी में. ट्यून इन पर सारी दुनिया में लाइव जा रहा है कार्यक्रम, फेसबुक पर सारी दुनिया में लाइव जा रहा है, यूट्यूब पर सारी दुनिया में लाइव जा रहा है. सो 4-5 जगहों पर लाइव जा रहा है. और अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं तो प्लीज़ बताइए. संदीप खोपकर जी अगर हैं, अमोलदीप सिंह अगर आप हैं वहाँ पर तो बताइएगा, नहीं तो मैं म्यूज़िक तो है ही है मेरे पास. और इसके बाद में, इस गाने के बाद मैं लेके आऊँगा हमारे दोस्त नीरज नंदा जी को. और रेनू सिंगल जी कह रही हैं, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूं मैं. और आशा विजय राव जी पुणे में जो बैठी हैं, वो बड़ी खूबसूरत बात कह रही हैं कि बात तो ढंग की लगी. सैडनेस इज यूनिवर्सल, डज नॉट नीड वर्ड्स. यस, बट समटाइम्स द वर्ड्स ऑफ सॉन्ग्स कैन एक्सप्रेस एंड मेक यू रियलाइज व्हाट यू आर फीलिंग.
सो दोस्तों, आप मेरी बात सुन रहे हैं। मेरी बात थोड़ी आज सही नहीं आ रही आप तक, लेकिन पहुंच रही है, दिल से पहुंच रही है। सो मेरे साथ अभी जुड़े हैं नीरज नंदा जी फ्रॉम मेलबर्न, साउथ एशिया टाइम्स। नीरज जी, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। आप कैसे हैं मनबीर जी? मैं फिट हूँ यार, एकदम फिट। नहीं, मेरे ख्याल से आपकी आवाज ठीक है। आपको ऐसे ज्यादा ही कुछ कह रहे हैं इस बारे में। ये आवाज की दुनिया का हो ना, तो थोड़ा भी आवाज टेढ़ी होती तो फिर फील होता है। हाँ, बट तो नीरज जी, मैं आपका फेवरेट सैड सॉन्ग बताइए कौन सा है? आई थिंक मैं थोड़ा सा न्यूज के बीच में आपको बताऊंगा, अभी मेरे को याद नहीं आ रहा। ओके। तो मेरे अक्सर काफी सारे सैड सॉन्ग हैं। हाँ हाँ। हमारे मित्र जो कनाडा से सिंगर मूसावाला की हत्या जी के बारे में बता रहे थे, जी। उसका लेटेस्ट 2-3 लाइनें ये है कि आज के ट्रिब्यून में, हाँ जो जी आज का ट्रिब्यून है थर्सडे का, जी उसकी लीड स्टोरी में यह है कि जिस समय उनकी हत्या हुई, मतलब जब गोलियां चला के जी हमलावर जो हैं, जो घातक हमला हुआ उन पे, जी जी। जिसमें बाद में उनकी मृत्यु हो गई, वो उस टाइम उनकी कार अंदर से बंद थी, मतलब वो लॉक थी, मतलब तो क्योंकि वो लॉक थी तो लोगों को बहुत मतलब मुश्किल हो गई, मतलब जो भीड़ वहां जमा हो गई उसको खोलने में, मतलब। और जब वो फाइनली उन्होंने तोड़फोड़ करके उसको खोल दिया, तो कुछ लोगों ने वहां ऑब्जर्व किया दैट ही वाज अलाइव एक्चुअली। ओके। इतनी गोलियां लगने के बावजूद, और बाद में फिर उनकी मतलब उनको अपनी जान गंवानी पड़ी। तो ये तो लेटेस्ट है मूसावाला जी की ट्रेजिक, जिसपे व्हाट एवर बी द स्टोरी, एंड अरे अभी कुआरा.com में भी कुछ नई स्टोरी आ रही है, लेकिन मैंने अभी वो पढ़ी नहीं है। ओके। तो अब चलते हैं आज की पहली खबर जी। ताजा खबरों के अनुसार ऑस्ट्रेलिया में ऑयल और गैस की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं, मतलब। हाँ। और इसके पीछे ऐसा कहा जा रहा है कि यूक्रेन की क्राइसिस है इसके पीछे, और इंटरनेशनल मार्केट में जो प्राइसेस हैं वो इंक्रीज होने से ऑस्ट्रेलिया में उसका असर हो रहा है, जिसका कि फाइनली असर हम सब के ऊपर होगा। बिल्कुल। कारण ये है कि ऑस्ट्रेलिया के जो लोकल सप्लाई, मैं इसका रीजन बता रहा हूं आपको। हाँ जी। कारण ये है कि ऑस्ट्रेलिया के जो लोकल सप्लायर्स हैं, वो यहाँ की गैस पर इंटरनेशनल प्राइस लगाकर सेल कर रहे हैं। ओके। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया इज बिग प्रोड्यूसर ऑफ गैस इन द वर्ल्ड, यू नो, और हम चाहें तो अपने आप को अपनी गैस दे सकते हैं पूरी, बट एक्सपोर्ट बिग कार्टेल है, बिग कंपनीज का, जो इसको एक्सपोर्ट करता है। बट मेरे ख्याल से ये इलीगल नहीं है इंटरनेशनल प्राइस को लेना, ऐसा मुझे लगता है। उधर प्राइस, एक खबर के मुताबिक प्राइसेस 500 to 1000 टाइम्स परसेंटेज इंक्रीज हो सकती हैं आने वेरी सून, मैडम। इतनी अधिक हो रही हैं, और ऑलरेडी कुछ स्टेट में ऑलरेडी इंक्रीज हो रही है। अब देखना भी है कि एल्बनी सरकार इस सिचुएशन से कैसे डील करेगी, मतलब ये आई थिंक उनकी पहली चुनौती है, मतलब एज ए सरकार की। जी। उधर एक ये अच्छी खबर है, और साथ में थोड़ा बहुत और, कि हिंदी जगत की जो राइटर है गीतांजलि श्री जी की हिंदी नॉवल रेत समाधि, जी। जिसका कि इंग्लिश ट्रांसलेशन है टॉम ऑफ सैंड, यस। को इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है, जिससे कि हिंदी जगत में बहुत खुशी है। बिल्कुल। और नॉवल का जो ट्रांसलेशन है वो डेजी रॉजवेल या क्या नाम है इनका, ने किया है, रॉकवेल। हाँ। और ये पहली बार है कि किसी हिंदी नॉवल को ये जो है ऐसा अवार्ड मिला है। आज तक पहले कभी भी नहीं मिला किसी हिंदी के नॉवल, इंटरनेशनल बुकर प्राइज। हाँ जी। और आपको एक तो और खुशखबरी दे दूं मैं नीरज जी, हाँ, कि in 2-3 weeks we will be talking to गीतांजलि श्री। आई विल बी सो एक्साइटेड टू हियर। यस, तो उनसे मेरी बात और हो रही है। वो बहुत बड़ी राइटर हैं। यस। और मुझे लगता है कि अब क्योंकि उनको ये अवार्ड मिला है, उनकी जो डेजी जी ने ट्रांसलेशन की है, जिसकी वजह से ये एक्चुअली में अवार्ड मिला, क्योंकि ये अवार्ड आधा 50-50 शेयर करेंगे ट्रांसलेटर और बिल्कुल। ये एक स्पेशल अवार्ड है जो इस टाइप का है। तो इसको राजकमल प्रकाशन ने छापा, इसको दिल्ली के जो राजकमल बड़ा फेमस हिंदी के पब्लिशर है वो। हाँ जी। अब लेखिका गीतांजलि जी है, इस पुस्तक पर भारत की जो रूलिंग पार्टी है, वो टेलीग्राफ न्यूज़पेपर के अनुसार हाँ। कुछ म्यूटेड रिस्पांस है उनका, मतलब इसके ऊपर,
क्योंकि लेखिका हैज बीन अ वोकल एंड फियरलेस एडवोकेट अगेंस्ट डिविजिवनेस। ये उन्होंने आज के टेलीग्राफ में लिखा हुआ है। वह देश में धर्मनिरपेक्षता यानी कि सेकुलरिज्म के पक्ष में काफी चिंतित हैं। और रूलिंग पार्टी की फेवरेट यूनिवर्सिटी से हैं, जेएनयू से जी। वैसे तो निर्मला सीतारमण करंट गवर्नमेंट में भी जेएनयू के लोग हैं, बट वो उनके कुछ स्टैंड डिफरेंट है। अब एक मंत्री को छोड़कर सारी भारत सरकार, ये जो इतनी बड़ी उपलब्धि है हिंदी भाषा को, जिसको कि आज की सरकार प्रमोट करना चाहती है जी, के ऊपर चुप है बिल्कुल। मतलब ये काफी एक इंटरेस्टिंग सिनेरियो है। मतलब इनफैक्ट इट्स वेरी स्ट्रेंज कि अगर कल पाकिस्तान का कोई ऑथर भी ऐसा कोई प्राइज जीते तो हम उनको कंग्रेचुलेट करेंगे, क्योंकि आर्ट लिटरेचर ये किसी बॉर्डर का मोहताज नहीं है। दे ब्रेक द बाउंड्रीज, बिल्कुल। तो अपनी कंट्री में अगर हम लोग ऐसी बाउंड्रीज बना लेंगे तो फिर हम क्या अचीव कर रहे हैं। हाँ, नहीं, ये बहुत बड़ी राइटर है और इन्होंने पहले भी बहुत कुछ लिखा है। अब चलते हैं जहां हम लोग रह रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में जी। उधर ऑस्ट्रेलिया में भारतीय जनता पार्टी के एमपी तेजस्वी सूर्या की IAYD इंडियन जो यूथ डायलॉग हो रहा है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया यूथ डायलॉग में भागीदारी को लेकर काफी गर्मागर्मी चल रही है। मतलब जी, काफी डिस्कशन के बादल मंडरा रहे हैं। हाँ, जो साउथ एशियन कम्युनिटी है, जो इंडियन कम्युनिटी है, उसमें जी। सिडनी में विरोध के चलते उनका एक प्रोग्राम को रद्द करना पड़ा। ये सब लोग जानते हैं इस बात को। उधर अब जो लेटेस्ट सिचुएशन है, मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रहा, क्योंकि एक ये भी इंटरेस्टिंग बात है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया यूथ डायलॉग वाले वो मीडिया को वहां पे आने ही नहीं देते। मतलब तो इसलिए मैं आई एम अनएबल टू कवर इट, और हम लोग वैसे ही जाते नहीं है कहीं पे भी। मतलब ठीक है। उधर मेलबर्न में जो ऑस्ट्रेलियन अलायंस अगेंस्ट हेट नामक एक संगठन है, जो सैटरडे को 4 जून को, अभी आज क्या तारीख है, आज 2 तारीख है, तो परसों वो यहाँ पे एक थॉर्नबरी थिएटर है, उसमें जमा होकर वहां पे एक मीटिंग कर रहे हैं वो लोग, MP साहब। उसके बाहर हेट के खिलाफ प्रदर्शन होगा। तो ऐसा हमारे पास जो खबर आई है, और जिसको मैंने अपनी वेबसाइट पे डाला, लोग उस पर पूरी स्टोरी, और वो अभी मेरे पास थोड़ी देर पहले एक पोस्टर आया था जो कि इस कार्यक्रम जो ये थिएटर में हो रहा है, इसको फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी जो है वो लोग इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं MP साहब के लिए, और वो शायद वहां पे मोदी सरकार के 8 साल की जो उपलब्धियां हैं उसके बारे में कुछ वार्तालाप करेंगे। ओके, अब आगे चलते हैं। उधर एक रिपोर्ट है, इलेक्ट्रल इंटीग्रिटी रिपोर्ट के अनुसार जो लिबरल डेमोक्रेसीज हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया भी एक लिबरल डेमोक्रेसी है, कि लिस्ट में अमेरिका का नंबर जो है काफी नीचे खिसक गया है और वो 15वें स्थान पर पहुंच गया है। जितने भी अमेरिकाज में, लैटिन अमेरिका में देश हैं, 15 कंट्रीज में, वो 15th पे पहुंच गया। छोटे छोटे देश डेमोक्रेसी के मामले में अमेरिका से आगे निकल गए। ये मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा। और टॉप पर पता नहीं भारत का क्या है, आई ट्राई टू रीड द रिपोर्ट, मुझे समझ नहीं आया वो, बट टॉप पे हैं फिनलैंड, स्वीडन और डेनमार्क, जहाँ की जो लिबरल डेमोक्रेसीज हैं वो फेमस है। और अमेरिका की जो हालत है वो मैंने आपको बताई। अब आगे चलते हैं। उधर भारत की जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एक जॉइंट सेक्रेटरी जो है वो इस समय काबुल की यात्रा कर रहे हैं, अफगानिस्तान के। तो MEA के प्रेस नोट के अनुसार वहां भारत द्वारा जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दी जा रही है, भारत वहां गेहूं वगैरह जो है उनको असिस्ट कर रहा है अफगानिस्तान को एज ए कंट्री। तो उसका वो जायजा लेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि इसको भारत द्वारा जो है वो तालिबान सरकार जो है अफगान काबुल में से किसी तरह का कुछ कांटेक्ट करने की भारत कोशिश कर रहा है, ताकि जो हमारी एम्बेसी और हम लोग जो वहां से हट गए थे उसको दोबारा रिवाइव किया जाए। बट ये वक्त बताएगा कि सच्ची मुच्ची में क्या होता है। अब चलते हैं ट्रिब्यून की एक न्यूज के मुताबिक कांग्रेस की प्रेसिडेंट सोनिया गांधी हैज टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोविड। ओके, ये भी लेटेस्ट न्यूज है। और कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला के अनुसार उन्हें आइसोलेट कर दिया गया है एज पर द रूल्स, इंडियन रूल्स। जबकि
और इससे कनेक्टेड न्यूज ये है कि अभी कुछ दिन बाद ही जून 8 को नेशनल हेराल्ड के एलिज्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस के आरोप में उनको इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने पेश होना था 8 जून को। तो मुझे लगता है अब वो शायद नहीं होगा, मतलब ओके क्योंकि वो आइसोलेट करेंगे। और अंत में एक बहुत अच्छी पॉजिटिव न्यूज, वेरी गुड। और फिर मैं आपको एंड में बताऊंगा कि मैं नेटफ्लिक्स पे क्या देख रहा हूं आजकल। और सैड अंत में एक पॉजिटिव न्यूज कि भारत के शानुक सेन की 94 मिनट्स की डॉक्यूमेंट्री ऑल दैट ब्रीथ्स वो 75th कैन्स फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का सम्मान मिला है। फैंटास्टिक। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, मतलब बिल्कुल बिल्कुल। और इस डॉक्यूमेंट्री की जो स्टोरी है कि वो एक बर्ड्स का हॉस्पिटल रन कर रहे हैं जी। और वो किस तरह से जो बर्ड्स हैं, उसमें कहने का अर्थ ये है कि मैंने थोड़ा सा पढ़ा था इसके बारे में हाँ। कि हर एक जीव को जीने का हक है, मतलब वो Including बर्ड्स जैसे birds. गर्मी की वजह से वो हाँ, परेशान हो स्काई जाते से हैं। गिर रही है। और जो इंटरनेशनल कंपनी है HBO इस डॉक्यूमेंट्री को सारे वर्ल्ड में रिलीज करेगी, ये खबर आई है। अमेजिंग अमेजिंग, आई एम सो प्राउड। हाँ, इट्स अमेजिंग। और ये मैं समझता हूँ बहुत बड़ी उपलब्धि है। साथ में वो जो हमारे को जो बुकर अवार्ड मिला है, ये दोनों बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं भारत बिल्कुल, की। बिल्कुल। और हर भारतीय को इस पे गर्व होना चाहिए, मुझे लगता है। हालांकि सैड न्यूज भी आती रहती है। उधर एंड में मैं यही कहूंगा कि नेटफ्लिक्स पे बहुत मूवीज चल रही हैं। एक मिनट बिफोर यू गो अहेड, तो मैं विवेक मैं जो देख रहा हूं, विवेक अग्निहोत्री कह रहे हैं कि उनको ऑक्सफोर्ड में उनका कैंसिल कर दिया प्रोग्राम। हाँ, उनका कैंसिल कर दिया क्योंकि ऑक्सफोर्ड में जिस संगठन ने उस यूनिवर्सिटी ने जो उसको कैंसिल किया है, उनकी ये थिंकिंग है कि ये फिल्म जो है हेट को प्रमोट कर रही है। उन्होंने ये बोला है, मतलब एंड इट इज नॉट ऑक्सफोर्ड। ऑक्सफोर्ड। बहुत गुस्सा है इस बात से, मतलब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का सिर्फ वो एक जगह थी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने नहीं इनवाइट किया था विवेक अग्निहोत्री को। वो ऐसे बता रहे हैं कि उनको जैसे ऑक्सफोर्ड ने इनवाइट किया था और फिर कैंसिल कर दिया। नो, उनके कोई चहीते थे, उन्होंने वहां पे किराए पे कोई जगह ली होगी ऑक्सफोर्ड की। मेरा मतलब है कि जो ऑक्सफोर्ड में प्रोग्राम होना था बेसिकली। और एंड में चलते चलते मैं नेटफ्लिक्स पे आजकल ब्रिटिश सीरियल देख रहा हूँ, ब्रिजेटन। ओके। उसका सेशन 1 के टुवर्ड्स द एंड में पहुंच रहा हूँ और मुझे काफी बॉलीवुड के फ्लेवर उस सीरियल में, हालांकि इट्स इन ए विक्टोरियन एरा ब्रिटिश, काफी इंटरेस्टिंग है। और उसकी सेकंड सीरीज में इंडियन एक्टर भी हैं उसमें, इंडियन। हाँ, वो सेकंड सीजन में इंडियन एक्टर्स मैं देखूंगा, तो तब मैं आपको जब भी कार्यक्रम होगा तो मैं उनके बारे में आपको कुछ और मैंने सुना है कि काफी मसालेदार है, काफी रेसी और स्टीमी प्रोग्राम है ब्रिजेटन। काफी स्टीमिंग है, और कुछ और शब्दों में कुछ और भी कहते हैं उसको। तो ये है कि मतलब कि जो रॉयल फैमिलीज हैं, जो रॉयल लोग हैं, तो इस सीरियल को जो मैं सीजन 1 को देख रहा था, मुझे लग रहा था कि चाहे कोई कितना ही रॉयल हो दुनिया में, मतलब या कोई, तो ह्यूमन बीइंग्स आर द सेम एक्चुअली में, दे एक्ट द सेम एवरीवेयर। बिल्कुल बिल्कुल। तो दैट्स इट फॉर टुडे। सैड सॉन्ग एंड माय बेस्ट विशेस फॉर एवरीवन। थैंक यू वेरी मच। सैड सॉन्ग कभी बताएंगे? अब सैड सॉन्ग तो एक मुकेश का गाना था, वो मुझे उसकी लाइनें याद नहीं आ रही अभी। मुकेश के तो सारे ही सैड हैं यार, वो बेचारा सैड ही रहा। हाँ, तो वो बना कि मैं आजकल सैड सॉन्ग नहीं गाता, मतलब गुड। जो आपने अभी गाना सुना रहे थे वो मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब। थैंक यू। सुमन माथुर कह रही कि कुछ तो लोग कहेंगे उनको ये गीत पसंद है, पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताई। एंड आशा जी कह रही हैं कि हिंदी की राइटर थी जो उन्होंने 8 किताबें लिखी हैं। एंड वी हैव बीन जॉइंड बाय अभा गार्गिया एंड पंकज यादव। थैंक यू पंकज यादव एंड अभा गार्गिया जी, प्लीज स्टे। चलिए, वो राजेश खन्ना की फिल्म थी जिसमें गाना था जिंदगी का सफर है सुहाना, वो मुझे बहुत अच्छा लगता था। वो अब मुझे याद, आई थिंक किसने गाया था, आई कांट रिमेम्बर। किशोर का है, किशोर का वो गाना, वो थोड़ा सैड सॉन्ग है और इन ए डिफरेंट वे उसको गाया गया है, मतलब बहुत खूबसूरत गीत है। एंड हालांकि मैं आजकल काफी बिनाका गीतमाला सुनता हूँ, मैं उनकी वेबसाइट पे लाइव आता है। हाँ। तो उसमें भी काफी इस टाइप के पुराने गाने होते हैं, मतलब। एंड डू यू नो कि जो अमीन सयानी जी हैं, ही स्टिल अलाइव। या आई नो दैट, यस। तो मेरा उनके बेटे के साथ कांटेक्ट है। अच्छा। बट ही इज सो सिक कि मैं बहुत देर से कोशिश कर रहा हूँ कि हमसे बात करें, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट हिम।
उनके अब बेटे क्या से है ना मेरी बात होती रहती है। कि मनबीर जी, मेरा जो मूवीज में इंटरेस्ट की शुरुआत बचपन में हुई है वो बिना का गीतमाला से हुई है, अमीन सयानी के ये प्रोग्राम से। या तो वो जो मेरा नैनी था जो मुझे बचपन में रखता था जी संभाल के, हाँ तो वो बिना का गीतमाला मुझे सुनाया कर। या तो थैंक यू भाई वेरी मच फॉर टुडे, वेंसडे नाइट्स को आया करता था और संडे मॉर्निंग्स बिना का जी। गीतमाला। चलिए बहुत बहुत थैंक यू। सो थैंक यू, ये नीरज नंदा जी हैव अ हैं गुड नाइट फ्रॉम एवरीवन। southasiatimes.com.au एंड वी जुड़ते हैं हमारे साथ हर थर्सडे नाइट को। सो थैंक यू नीरज जी, अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय। टेक केयर। ऑलराइट, सो दैट वाज नीरज नंदा जी एंड मैं अभी उनको बाय बाय कर रहा हूँ। एंड ये बता दूं आपको कि 9:15 हुए हैं। टुडे इज the 2nd of June 2022 and this is our 186th episode of Kehte Sunte that we are doing live on Facebook। और हमारे साथ सिद्दीक पानवाला साहब भी जुड़े हैं। सिद्दीक जी कैसे हैं आप? और अपर्णा वो कह रही हैं कि हम ना समझे थे बात इतनी सी गर्दिश मूवी। कैसी हैं आप अपर्णा जी? बहुत देर बाद आप इस कार्यक्रम को देखने आई। सो प्लीज स्टे अराउंड। एंड सुमन माथुर कह रही हैं कि लॉट्स ऑफ वेरी इंटरेस्टिंग न्यू आइटम्स। थैंक्स नीरज नंदा जी। एंड सो बताइए आपके कौन से सैड सॉन्ग्स हैं? मेरे पास 2-3 आए हैं सैड सॉन्ग्स। लेट्स सी अगर कोई ओके, सो आई गॉट अ फ्यू। लेट्स सी इफ आई कैन रीड देम आउट। हाँ, मैंने कहा था जैसे हम थे जिनके सहारे। अभा गार्गिया जी कह रही हैं टूटे हुए ख्वाबों में। ये तो मोहम्मद रफ़ी साहब का। एंड वो भूली डिस्टेंस लो फिर याद। वो भूली डिस्टेंस लो फिर याद, क्या हो गया ये यार अभा गार्गिया जी? आधा अंग्रेजी में आधा आप हिंदुस्तानी में बोल रही हैं। एंड आशा जी कह रही कि नीरज जी थैंक्स, न्यूज़ का पिटारा। सो यस, थैंक यू फॉर योर इनकरेजमेंट। आप सब लोग जो वहाँ पर देख रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं। एंड यूट्यूब पर भी हम लोग लाइव हैं। और सुमेश सिब्बल जी हमारे साथ जुड़े हैं कि वाई वॉज सिद्धू ट्रैवलिंग विदाउट द 2 guards he had? 2 were taken but he still had 2, also didn't take his bulletproof car. Yeah, raises doubts where was he going. Yeah, true. सुमेश, एंड अनफॉर्चुनेटली हम लोगों को कभी पता नहीं लगेगा इसके बारे में कि क्या हुआ। बट इन द एंड 28 साल के एक जवान इंसान की मौत हो गई, विच इज़ वेरी सैड। एंड सोमेश सिब्बल हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। एंड जब मैं हमारी सोसाइटी की जो डिफरेंसेस हैं जो होती हैं हमारी सोसाइटी में आजकल बढ़ रही हैं, तो जब मैं उससे परेशान होता हूँ तो मैं सोमेश सिब्बल जी से बात करता हूँ। एंड सोमेश सिब्बल डज अ लॉट ऑफ कम्युनिटी वर्क एंड ही इज़ अ गुड फ्रेंड। सो थैंक यू सोमेश फॉर बीइंग देयर एंड फॉर लेटिंग मी नो कि आप ये कार्यक्रम देख रहे हैं। लेट्स प्ले सम म्यूजिक एंड सी उसके बाद क्या करना है। मुझे तो पता नहीं उसके बाद क्या करना है। और अभी हम लोग वी हैव बीन जॉइंड बाय शांति रमन जी। एंड शांति आप तो स्टार बन गई हैं भाई। शांति रमन फीचर्ड इन ABC's शो परसों नहीं, किस दिन हुआ था मैं भूल गया। मेरी तबीयत थोड़ी नॉटी है, लेकिन या तो ABC पर शांति रमन जी जो कि एक पीडियाट्रिशियन है। एंड तो शी वॉज देयर ऑन दैट शो ABC का इंडिया। एंड इट वॉज अमेजिंग टू वॉच हर। सो शांति, इट वॉज फैंटास्टिक। और अभा गार्गिया जी अपना वो गाना क्लैरिफाई कर रही, वो कह रही कि वो भूली दास्तां जो फिर याद आ गई, लो फिर याद आ गई, मस्ट बी टाइपो। यस ऑफ कोर्स। सो अभा गार्गिया जी एंड या शांति, सो स्टिक अराउंड एंड टेल अस। इट वाज, अगर आप लोगों ने वो शो नहीं देखा है तो ABC का वो अभी भी अवेलेबल है, आप यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं। इट्स अ गुड सीरीज। और उसमें पहले अमित टंडन एंड शांति रमन जी उनका इंटरव्यू हुआ था उस दिन। And they spoke about India and what India is. So 6 episodes है. That was the first episode. But here we go.
और अपर्णा ने एक बड़ा खूबसूरत गीत याद दिलाया मुझे, ज़िंदगी के सफ़र में गुजर जाते हैं जो मकाम, आपकी कसम का. इट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग्स. सो थैंक यू अपर्णा जी, एंड थैंक यू. एंड शांति रमन कह रही है थैंक्स ऑब्वियसली अबाउट हर परफॉर्मेंस ऑन दैट ABC शो. और वो कह रही हैं कि थैंक्स, नॉट अलाउड टू से मच कंट्रोवर्शियल, आई डोंट नो व्हाट यू मीन बाय दैट शांति जी. एंड ऑफ कोर्स अपर्णा जी कह रही हैं कि माँ तारे ज़मीन पे का गीत, एब्सोल्युटली बहुत खूबसूरत गीत है माँ, बट सैड नहीं है ना. इट इज़ अ ब्यूटिफुल स्वीट सॉन्ग. एंड ऑफ कोर्स आपको सैड लगेगा अगर इफ़ यू हैव लॉस्ट योर मम लाइक आई हैव. सो yes, it is sad then, but yeah, but while you listen to it, you will get immense pleasure. तेरे जाने जा आओ ना मुझको ना ऐसे तरसाओ, आओ ना हूँ मैं तेरी मान लो सनम, जो भी हूँ तेरी जान लो सनम, सब को छोड़ के आई हूँ यहाँ, मेरे मंदिर है तू जो है वहाँ. ओ मेरी सजना आओ ना मुझको ना ऐसे तरसाओ, आओ ना हूँ मैं तेरी मान लो सनम, जो भी हूँ तेरी जान लो सनम, सब को छोड़ के आई हूँ यहाँ. और खूबसूरत गीतों के बारे में पता लग रहा है. लेट्स सी कौन से और गीतों के बारे आ रहा है कि कौन से अच्छे गीत. हाँ, दो नैना और एक कहानी अपर्णा कह रही हैं फ्रॉम द मूवी मासूम. या सो दैट वाज अ नाइस सॉन्ग, दो नैना और एक कहानी, ब्यूटीफुल. सो सैड सॉन्ग्स का एक अलग ही मज़ा है जो लोगों को पसंद आते हैं, एंड इट गिव्स देम हैप्पीनेस. तो ये बड़ी अजीब बात है कि भाई दुखी गाने आपको खुश क्यों करते हैं, बट एज ह्यूमन बीइंग्स वी आर क्वाइट कॉन्ट्रडिक्टरी. और कौन से अपर्णा जी कह रही है नाराज सवेरा है हर और अंधेरा है. अच्छा, आई डोंट नो दिस सॉन्ग यार. और सुमन माथुर कह रही है तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा नहीं. ब्यूटीफुल, दैट्स अनदर ब्यूटीफुल सॉन्ग फ्रॉम आंधी. सो क्रिस मलिका भद्रा भी आएंगी, तो उतनी देर थोड़ी और म्यूजिक आप. मेरे मंदिर है तू जो है वहाँ. आओ ना आओ ना आओ ना आओ ना आओ ना आओ ना. सो दोस्तों, आपको बता दूं कि अभी मेरे पास पहुंच चुकी हैं हमारी दोस्त क्रिस मल्लिका बद्रा. और क्रिस मेलबर्न में बैठी हैं, एंड आज उनकी कंप्यूटर स्क्रीन काफ़ी क्लियर है. एंड हियर शी इज़. क्रिस, कैसी हैं आप? गुड इवनिंग मनबीर, मैं ठीक हूँ, आप कैसे? गुड, मैं भी ठीक हूँ. थोड़ी आवाज़ मेरी आज
क्लासिक हो गई है एंड आई एम एंजॉयिंग दैट फ्लू. तो क्या हो रहा है कोकोनट चैट्स पे? मनबीर, इस वीक हमने जो चैट रिलीज की है that talks about body shaming and eating disorders. So we've tried to cover the various harmful effects when you body shame someone. क्या असर होता है उन पे जो body shame किए जाते हैं. And sometimes it leads to depression, excessive or excessive eating, bulimia or something. So we've tried to cover that. Okay, that's very sad. Yep. And so who are you talking to in that video? I've spoken with a lady called Suswati Basu. She is in the UK. She's a podcaster herself. She's written a few books and she's also been very famous in kind of journalism and podcasting. So it was a good interaction speaking with her. Okay, all right. So मैं बता दूं कि क्रिस मल्लिका भद्रा does coconut chats. YouTube पर जाकर आप coconut chat ढूंढने तो आपको वो मिलेंगी, और कभी-कभी थर्सडे को हमारे साथ भी होती हैं. And she brings all these vexed, weird, twisted questions about life. And कई बार मुझे समझ नहीं आता कि किस चीज़ के बारे में बात करनी. जैसे आज का टॉपिक, आज क्या बात करना चाह रही हैं आप? टॉपिक थोड़ा सा लंबा है मनबीर, but I'll try my best to summarize it. Yeah. होता है ना, मुझे लगता है कि and this is applicable for societies both in India and overseas. Okay. Has been my experience when a woman who is dancing or a woman who is a dancer is not taken very positively in some people's eyes. Okay. So felt very weird to me. So I thought कि क्यों ना इस पे बात की जाए और लोगों की राय जानी जाए. हाँ. तो आप why don't you open and tell us कि ये कहाँ से आपको ये विश्वास हुआ, कोई personal example या कुछ कहाँ से आपको ऐसा लगा? This was a few years, probably 1 or 2 years ago. I was trying to talk to this person. You are kind of sent to meet each other by our parents. कि भाई बात कर लो, देखो how do you go and all that. तो normal conversation हो रही है. And that person knew that I'm a trained dancer and I perform. Yes. And I have no regrets about it. I'm like very proud of the work I do. Absolutely. तो मैंने ऐसे बोल दिया and suddenly he's like, giving me a smirk. मुझे पहले समझ नहीं आया कि smirk किस लिए है. And then suddenly saying कि पता है, what, जहाँ से मैं belong करता हूँ, वहाँ पे जो औरतें डांस करती हैं उनको ना एक बड़ा हम different term देते हैं. Okay. And then he's smirking. तो पहले तो मुझे समझ नहीं आया कि what is he saying. फिर मुझे ध्यान आया कि he's not obviously using that word in a very positive sense. तो उसने कहा कि तुम्हें ऐसे बुरा नहीं लगेगा अगर तुम्हें ऐसे कोई डोनेट करे. ऐसे मुझे ऐसे विचार वाले इंसान के साथ सेम टेबल पे बैठना ही नहीं है. Because I don't think dancing is something to be ashamed of. This is my passion. It's an art form. And it's an art. जिसको आर्ट की समझ नहीं है उसके साथ मैं एक टेबल पे बैठना ही नहीं प्रेफर करूंगी. Then obviously I was kind of not dumped. That person rejected my proposal. So that got me thinking कि भाई आपको since ये understanding नहीं है, so you are just free to kind of reject a woman just because she's into some kind of performing arts. And then आपको ये liberty भी है कि आप जिससे पहली बार मिल रहे हो आप उसको टेबल पे कुछ भी सुना दोगे just because they're pursuing an art form which you don't have that understanding of. तो ये जो shame है for women who perform, it's not only restricted to dancing but other things also. कि movies में और I remember कि पहले के ज़माने में तो women were looked very very negatively जो फिल्मों में काम करती थी, जो थिएटर में थी. इंडियन सोसाइटी की बात कर रहा हूँ मैं. जी. एंड कि भाई हाँ ये तो ठीक घर की लड़की नहीं है और ये कैरेक्टर की ठीक नहीं है. लेकिन I think slowly and steadily that image is changing. And it's very typical of some males कि they I don't see it changing, Manbir. I don't see it really changing because I can tell you another incident. So my father was here in 2017. Yeah, okay. Right? So I had just graduated. वो मेरी PhD graduation तो attend नहीं कर पाया, but he was just down here for a week. Anyway,
तो मैंने उन्हें कहा कि चलो मैं ना आपको एक एसोसिएशन में विच आई एम अ पार्ट ऑफ वहां लेके चलती हूँ, you'll get to meet all the people. Yeah. So one man, we are having dinner. Suddenly somebody I know for the last so many years comes up to him and says, Uncle, आपसे मिलके तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन आपकी बेटी तो पूरे शहर को नचा रही है. And in a very मजाक कर रहे off-puttish हो. way. जी, and my dad was like literally taken aback, and he kind of told him very politely कि बेटा आप जैसे बोल रहे हो ना, ये कॉम्प्लीमेंट से ज्यादा एक सटायर आ रहा है कानों की तरफ. What are you trying to say कि मेरी बेटी नचा रही है पूरे शहर. So these are the incidents that I've kind of come across in my own life, where people just say anything and everything if you're into performing arts. Nothing has changed really. So when your father confronted him, what did he say? Oh, uncle, I'm so sorry, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था. तो dad was like, well, सुनाई तो वैसे ही लग रहा था कि वो kind of trying Very to good. demean her in front of her own father. Yeah, So nothing it's has 2017 और अब में क्या 5 साल का फर्क है. कुछ उतना बदला नहीं है. Mentality वैसी ही है, more or less. और ऐसे वाले जो लोग हैं ना, जो the ones that you're talking about, ये वही हैं जो लाइव शोज पे जाके औरतों के डांस देख के बड़े खुश होते हैं, and they have fantasies about that, and I think that is why probably they don't like their own women dancing, because they think that the other men will also think like they think about women. What is so bad about dancing? Like ऐसा तो नहीं कि हम बिना कुछ पहन के perform कर रहे हैं. We are fully covered, and Yeah. even if you're not, then what? It's Yeah, my yeah. choice. No, it's not that. It is कि भाई आप स्टेज पे हैं, so suddenly they feel insecure कि भाई now anybody can say anything, anybody can, you know. So वो आपको एक, स्टेज पे चढ़ने के लिए किसने मना किया? If the हाँ जी. stage can accept me, it can accept anyone, right? Yeah. But it's a talent that you're doing, you know. It's not कि without सिर पैर के, जैसे आजकल मैं देखता हूँ ना कि भाई बस कमर हिला दो तो डांस हो जाता है. अगर वो भी कोई कर रहा है मनवीर, चलो कोई सीखने की कोशिश कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, does that mean I have got the rights to shame that person? No, absolutely not. सुमन माथुर कह रही हैं कि there are still people in India who look down at performing arts in towns. In metros, cities, parents are being very proactive in enrolling the children in all manner of classes. Yeah, that's true. And Manjusha Bhadra कह रही हैं कि keeping any profession or any hobby is completely personal. Nobody should interfere. It's very mean. Yeah. But क्या करोगे भैया? हम तो we are men. We can do whatever we want. And Aparna कह रही हैं कि as a child I wasn't allowed to learn dancing because it was looked at in a derogatory way. But Aparna, has the situation changed now? हमने तो अपने बच्चों को encourage किया है to learn dancing, to learn the arts, and we always encourage them. As parents, we've always seen that encouragement coming. Even my parents have always encouraged me. अभी भी जैसे if I'm performing, my mother will be like, क्या कर रहे हो? Costume का क्या है? What? I always send the videos to them. So they're always behind my back. But it's always when, you know, a woman is made to kind of check the text boxes. How sushil is she as a matrimonial purpose? That's it when you're judged. And that is something I have deep objections to. Like, I want to recount a funny incident. There was this guy who's like, मैंने उसे कहा, पहले तो ये लोग पूछते हैं आपसे ना, इतने अच्छे से पूछेंगे कि you feel like, अच्छा, this guy is really appreciating my talent and art. What are your passions? तो तब I was very naive. मैं ना ऐसे बड़बड़ बोल देती थी कि हाँ, I'm into this and that. I just happened to tell him that I'm into performances and we kind of rehearse every weekend, blah, blah, blah. That person is saying, ठीक है, तुम अगर हर वीकेंड पे डांस रिहर्सल करोगी, मैं भी हर वीकेंड पे पैराग्लाइडिंग करूंगा, बिकॉज पैराग्लाइडिंग इज माय पैशन. तो करो ना यार. मैंने कहा करो, किसने मना किया है? आई हैव नो प्रॉब्लम. लेकिन एक ही चीज है, माय रिहर्सल्स लिटरली कॉस्ट मी नथिंग. फॉर यू पैराग्लाइडिंग वन सेशन इज $500. इफ यू कैन मेंटेन इट, go for it. I have no issues. That's correct. तो वो रेस्पॉन्स बुरी लगी. अच्छा, तुम्हें बुरा नहीं लगे? मैंने कहा यार, मुझे क्यों बुरा लगेगा? If you like what you're doing, who am I to come your way? कैसे लोगों के साथ आप इंटरेक्ट कर रही हो? मुझे तो आप पे शक हो जाता, क्रिस. Why do you attract such clowns? I don't know. I think I give off very negative energy. आप कोई क्लाउनो मैग्नेट हो, you know, वो जैसे Negative नॉर्थ साउथ. magnet. तो I think you attract clowns. I don't know why. Maybe opposite. Maybe This is opposites. worse than a clown. This was worse than a clown.
हाँ कि 2022 में, और अगला मेलबर्न में रह रहा है कि कहीं पे पलिया में कहीं पे, हाँ मेलबर्न में। तो फिल्में देखता है कि नहीं? मुझे क्या ये सुनने के बाद आई वाज लिटरली zoned off from the rest of नहीं, the बट वो हिंदी conversation. फिल्में देखता है कि नहीं? माधुरी देख दीक्षित को डांस करते हुए देखता है कि नहीं? कटरीना देखा ही कैफ को? होगा. तो फिर क्यों जाता है? वो तो कटरीना कैफ है ना, उसको कौन नहीं देखेगा, बट तुम नहीं करोगी. क्योंकि वो जिस हिसाब से कटरीना कैफ को देख रहा है उसके दिमाग में है कि भाई ये क्रिस को भी लोग ऐसे ही देखते होंगे, बिकॉज दैट इज द ओनली थिंग। प्रॉब्लम किस साइड पे, मेरे परस्यू करने में या उसके नजरिए में? आई थिंक बेवकूफ है। हाँ। लगाओ उसको फोन लगाओ, पुट हिम ऑन लाइन या इनवाइट हिम ऑन द जूम टॉक, वी कैन हैव अ चैट विद हिम। I'm no longer in touch with these people. I don't prefer to keep in touch with these kind of people. But I am worried about you. Ki what kind of people are you interacting with? Yeah? You need to move out of your circle. It is what it is, Manbir. यहाँ की ना dating scenario बड़ी खराब, even matrimonial scenario बड़ी खराब है. अच्छा? Wow. नहीं, actually problem, I think we are digressing, but very quickly. You know what is, when they say that let's go for coffee and dinner, they have everybody has a right to ask you all sorts of questions. अब आप किस पे क्या रोक लगाओगे, and how will you know कि ये बंदा या बंदी ये पूछेगी आपको? I'm sure a lot of men are also embarrassed by questions women ask, but these are my experiences. तो मुझे ना ये प्रॉब्लम होती है फिर कि भाई मैं परफॉर्म कर रही हूँ, why am I being seen in a very derogatory manner just because I'm into a form of performing up? अपर्णा कह रही कि एब्सोल्युटली, मैंने पूछा था ना कि सिचुएशन अभी कैसी है, तो वो कह रही कि एब्सोल्युटली यस, इट हैज इम्प्रूव्ड. इट वाज माय ग्रेट grandparents' views. My parents were very flexible about it. My nieces and nephews are very much into dancing and perform on bigger platforms. So Aparna, अगर मैं, if I'm not mistaken, you're from Maharashtra, aren't you? और महाराष्ट्र में तो पूरी ट्रेडिशन है, जैसे बंगाल में है डांसिंग. पंजाब में ऐसे फॉर्मल डांसिंग की ट्रेडिशन नहीं है, गिद्दा वगैरह होता है, लेकिन देयर आर नो सोलो परफॉर्मेंसेस वाला. पंजाब का आई डोंट नो, शायद नहीं है, आई कुड बी टोटली रॉन्ग, लेकिन महाराष्ट्र में तो देयर इज अ बिग ट्रेडिशन. एंड वो कह रही कि 80% ऑफ पीपल बिहेव आउट ऑफ प्रोजेक्शन. यस, यू आर राइट, इट्स ऑल अबाउट प्रोजेक्शन. कि हम जैसे सोचते हैं, हम सोचते हैं कि वैसे ही लोग सोचते हैं. वंस वी रियलाइज दिस, अदर्स इनसिक्योरिटीज वोंट बॉदर अस. एब्सोल्युटली ट्रू, एब्सोल्युटली ट्रू अपर्णा, आई एग्री कि लोगों की प्रोजेक्शंस हैं. Because जब ये incidents मेरे साथ हुए थे ना, I came home and I can't tell you, I was so disheartened. Like I called up my mom and like, मम्मी ये हो गया, उसने मुझे reject कर दिया, ये कर दिया. Now I'm like, you know what? If you don't find me in a positive light, that's your problem, not my loss. I'm not going to cry or lose my tears over you. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. नहीं, लेकिन ये, और ये लोग मेलबर्न में रह रहे हैं, which is surprising. मेलबर्न मुझे लगता है बड़ी एनलाइटेंड सिटी है. मैं देखता हूँ जहाँ पे वहाँ के जो इंडियंस भी हैं बहुत प्रोग्रेसिव है, पढ़े लिखे हैं. एंड but what you're telling me is yeah, and Aparna is saying yes, I'm from Pune. Yes. Yeah, as I said, I give off a very weird kind of energy. I've only attracted specific examples. The other thing could be वो होता है ना, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और. On the top, I come across as very subtle, literate, educated, but behind that is a completely different facade. मंजुषा बद्रा कह रही हैं कि watching माधुरी और कटरीना is energy tablet for men, but when it comes to his wife or daughter, then strictly no. Yeah, true. वो तो you know, they'll also dream and fantasize about Katrina. लेकिन अगर आप बोलो ना कि कटरीना जैसे ही कॉस्ट्यूम पहन के I want to perform, the obvious response will be ये क्या कपड़े हैं? बिल्कुल. And Shanti Raman कह रही कि among South Asian Indians, it is a given that young girls and young women learn the following arts almost compulsory. Yes, I agree. South Indian, I mean, there is a tradition to learn Bharatnatyam or to learn some other arts. I think it is important. And if you want your daughters to be independent, if you want your daughters to be involved in the arts so that they are balanced
young, motivated people, I think we should encourage them to join the arts. I have done that with my kids. One of my children is a Kathak dancer. Okay, and we encourage her. In fact, जब उसकी HSC भी हो रही थी, तो we did not miss a single class. Can you believe it? HSC के time पे भी, year 12. Yeah. We said no, you will go. And Aparna keh rahi, Chris, we must ask our own selves this question. Why is that anyone's bothering me? We need to do some inner shadow work. What do you mean, Aparna? What is shadow work? बताओ यार, shadow work क्या होता है? So, I think what she means is we need to introspect that why is anyone else's words bothering yeah, why me? are they Maybe. affecting us? I understand that. But look, others' words do affect us. और हम लोग ऐसा बोल नहीं सकते कि others' words don't affect us. They do affect us. कभी ज़्यादा करते हैं, कभी थोड़ा करते हैं. And it will be foolish to say कि नहीं करना चाहिए क्योंकि unfortunately हम इंसान हैं. कोशिश होनी चाहिए कि ना करें affect. Ideally, लेकिन अगर आप मेरे जैसे हैं तो people's words do affect you. You know, आज हम लोग बात कर रहे हैं मैं और Chris, and Chris says something stupid on air. It can affect me. क्यों? Isn't that true, Chris? मनवीर आपको मतलब you have this doubt कि कभी कभी I can go stupid. No, because of the people you hang around with, यार. तुम भी क्या पता इन्फेक्शन ले आओ उनसे. हाँ? मेरे को बोलो कि भाई I don't like people who do YouTube and who do Facebook live. फिर क्या करूँगा मैं? फिर तो वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली होगी ना, because I am in the same boat. Yeah. But that doesn't stop people from, you know, when they are in the same boat, who are whistling or dreaming about Katrina Kaif. You know, because वो कम कपड़े पहन के आई है, so they are thinking about her. So वो contradiction is not a guarantee कि they will, you know. And Aparna कह रही कि मैं ना inherently visual erotics. That's where this point of view stems from, the topic of your current discussion. So we are visual erotics. So but we can't minimize it. We have to take responsibility as men. You can't just say कि भाई हाँ ये तो men है, ये तो ऐसे ही करेंगे. No, जूते मारो इनको. अगर वो hypocrisy दिखाते हैं कि बाहर कुछ और दिखाते हैं, घर में कुछ और दिखाते हैं, they need to be pulled up for that. And I live with three. I did try to pull them up and I got rejected. Yeah, that's okay. No harm done. No harm done. Aparna, you're so right. Yeah. So ये जो है ना कि भाई ये जो उनका point of view है, because वो खुद नीच विचार से देखते हैं लड़कियों को, especially stage पे जो होती है. तो and Shanti, if you're watching, Shanti also is a dancer. She's a doctor. I don't know if you dance even now, Shanti, but yeah. The first time when I heard that sentence, I was like literally dazed for 5 minutes. कि बंदा मेरे मुंह पे ये बोल क्या रहा है? And then he's smirking. अभी आज का दिन होता ना, मैंने तो उसका मुंह तोड़ देना था मुक्का मार के. नहीं, no violence, no violence. अभा गार्ग्या कह रही हैं कि Chris, you should not worry about such people who don't have any appreciation for art. I have seen your performance on Facebook and they are absolutely beautiful and traditional. There you go. Tell me, this is the power of Kehte Sunte. Ki you have people sitting in Sydney who appreciate your work. And you're sitting in Melbourne and Abha has never met you. But look at that support, look at that energy that she's sending you. Thanks, Abha. मनवीर आप ही ने मेरे इस बार वीडियो पे कुछ कमेंट नहीं किया. मैं हमेशा अच्छा पॉसिबल नहीं है, वो आया नहीं होगा मेरी फीड में, नहीं तो मैं जरूर कुछ yeah I would because yes my kids also dance, so I do appreciate that. मुझे समझ नहीं आता है लेकिन I enjoy the energy, the passion, the nervousness, you know, जो पहले होती है performance के. Yeah, so I enjoy that. I enjoy the preparation, makeup उसके पहले जो हो रहा है. पूजा सेजवाल कह रही है, अरे वाह, another word of support for you भाई. The right person will accept you as you are and your hobbies. Wrong person will find problems with everything. Yeah, true. Puja, it's not about the right or the wrong person. It's more about how we misuse our freedom of speech sometimes. Like,
you and I are just acquaintances or friends. इसका मतलब ये नहीं कि I have the right to just say anything on your face. ट्रू ट्रू हाँ तो कभी मिले वो बंदा तो देख लेना भाई उसको बोलना कटरीना कैफ की नई फिल्म देखी कि नहीं हाँ? चलिए ठीक है थैंक यू क्रिस Thank you, Manbir. yeah and ignore these clowns and develop a better circle of friends Thank you. or you change your Take care of dating app yourself. go to a different dating app I will. yeah don't go to these clowns okay Thank you, Manbir. you take care have a good night You too. Bye. bye bye so ये हैं Chris Mallika Bhadra talking to us from Melbourne and Chris का podcast है Coconut Chats and you can watch that on YouTube हमारे पास में अभी 14 मिनट बाकी है अगर आपके पास में कुछ बात करने के लिए है तो बताइए नहीं तो मैं म्यूजिक लगाता हूँ आप म्यूजिक सुनिएगा नैनों ने किए ये इशारे दिल तेरा मुझे पुकारे मेरे पलकों में चुप जाओ ना आरे मायूं न तरसाओ ना ठंडी रातें की सांसें गुलाबों में करती बातें और support coming in for Chris Suman Mathur कह रही हैं कि we look at Chris dancing on Facebook and admire her each time. Thank you for that, Suman, because Chris is part of our family, the Kehte Sunte family, and it's quite ridiculous कि कोई किसी की ऐसे बकवास करने की हिम्मत हो. And Aparna कह रही है कि that's what I'm pointing at. Focus on people who appreciate us. Go where you are celebrated. We as humans have a choice. Absolutely true. Absolutely true. But sometimes people get stuck. And Pooja Sejwal ji is agreeing with that. And Aparna आगे कह रही कि freedom of speech doesn't mean freedom from consequences. People forget this. Manjusha ji, thanks. Suman कह रही हैं. Pooja Sejwal कह रही हैं. Take care. Keep dancing, Chris. And she's sending love to Chris. And Abha Gargia कह रही हैं कि thanks, Chris. Take care and good night कह रही हैं. So yeah, thank you. It's amazing कि हमारी ये छोटी सी जो हमारा ये रेडियो शो है, it's becoming a little community जिसमें लोग एक दूसरे के लिए people will stand up and support each other. And on the question of support, I will request you कि आप अपने दोस्तों को बताइए इस कार्यक्रम के बारे में. It's a small program और हम लोग कोशिश कर रहे हैं आप तक meaningful content लेके आने के लिए. And Suman Mathur, thank you. Suman कह रही है, take one Telfast and you will feel better. Wishing you speedy recovery, but you do sound good. Thank you. Thank you, Suman. I sound croaky, but what to do? I don't like taking medication, unfortunately. So I'll just let my body do its work and do what it wants to do. So Chris is thanking everybody for such love and beautiful words. Yes, it's beautiful. And so इसको हम लोग sisterhood बोलते हैं ना, जैसे सुमन and Abha and of course Manjusha is her mother, Aparna, Pooja Sejwal, and ये सब people have come. Abha Gargia ji, yeah, they've come to bat for Chris, and thank you very much for that. क्योंकि that is what makes us a great society. Aparna कह रही है भरे नैना from Ravan is one sad song to भरे नैना. तो हम लोग यह sad songs की भी बात कर रहे हैं. Let's see कि लोगों ने कोई और sad songs की लिस्ट में इजाफा किया है कि नहीं. Let's see. तो मेरे sad songs की लिस्ट में क्रिस मलिका कह रही हैं वो लम्हे वो बातें हैं जहर. ये I don't know this song. एंड सुमन माथुर ने बहुत खूबसूरत गीत की बात बताई है कि जिंदा हूँ इस तरह की गमें. ये पुराना गीत है. जिंदा हूँ मैं, ये मुकेश का है शायद. और चिड़िया पूजा सेजवाल कह रही हैं. एंड ऑफ कोर्स सुमन माथुर, जैसे मैंने कहा, तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा नहीं. सो यह पुराने और नए गीतों का कि भाई जो सैड सॉन्ग्स हैं हम लोग उनकी बात भी कर रहे हैं.
और दोस्तों मेरा नाम मनबीर सिंह कोहली है एंड लेट्स से यूट्यूब पर यस एंड सोमेश सिबल कह रहे हैं आई डोंट थिंक ही इज देयर बट वो कह रहे हैं कि सॉरी आई कांट अप्रिशिएट द कॉन्सेप्ट ऑफ सैड सॉन्ग हाउ कैन अ सॉन्ग बी सैड बियॉन्ड माई ब्रेन बात तो सही है एंड ऑफ कोर्स ही इज टॉकिंग अबाउट सिद्धू मूसेवाला यस नो टाइम टू डाई एट 28 एब्सोल्युटली ट्रू थैंक यू सोमेश एंड इट्स वेरी सैड अपर्णा को भी मेडिकेशन लेना पसंद नहीं है थैंक यू अपर्णा एंड शी सेइंग मी नाइदर डोंट लाइक टेकिंग मेडिकेशन yes Abha I have had the flu so hopefully this is just the final few days maybe क्रिस मलिका कह रही है लग जा गले कौन सी फिल्म का गीत है ये आपको हाँ ये मधुमती का है शायद कि फिर ये कभी रात हो या हो ना हो चिट्ठी ना कोई संदेश यस पूजा सेजवाल दैट्स अ वेरी सैड सॉन्ग वेरी ब्यूटिफुल चिट्ठी ना कोई संदेश जगजीत सिंह का सो यस एब्सोल्युटली ब्यूटिफुल and yes so keep that conversation going and I'll play some not sad songs मेरी अदाएं पागल अपर्णा ने कहा कोई फरियाद बाय जगजीत सिंह ये मुझे याद नहीं आ रहा है एंड आतिफ डंग आतिफ कैसे हो भैया तड़प तड़प सो आतिफ इज अ मेलबर्न बेस्ड कॉमेडियन स्टैंड अप कॉमेडियन एंड ही रिसेंटली परफॉर्म्ड विद अमित टंडन के साथ में उन्होंने किया था सो एंड ही वाज ऑन आवर शो एंड अगेन आतिफ के साथ भी धीरे धीरे हमारी दोस्ती बढ़ रही है एंड सुमन माथुर कह रही हैं कि मेरे नैना सावन भादो फिर भी मेरा मन प्यासा एब्सोल्युटली फ्रॉम द मूवी कुदरत बाय एंड उसमें राजेश खन्ना थे एंड हेमा मालिनी सो ग्रेट मूवी एंड ग्रेट सॉन्ग्स आर डी बर्मन के गीत थे एंड अपर्णा कह रही हैं क्यों किसी को वफा के बदले तेरा नाम क्यों किसी को वफा के बदले मुझे याद नहीं आ रहा है ये गीत लेकिन हो सकता है आई डोंट नो द सॉन्ग आई कांट रिमेंबर इट अतीफ कह रहे हैं तड़प तड़प ये कौन सा भैया तड़प तड़प आई डोंट नो दिल तड़प तड़प के कह रहा है आ भी जा वो तो सैड सॉन्ग नहीं था यार वो तो हैप्पी सॉन्ग था सो आई डोंट नो सो लेट मी प्ले सम म्यूजिक एंड नीरज नंदा जी कह रहे हैं कि संसार एक नदिया ही सुख दुख गा के सुनाओ ना यार नीरज नंदा जी मुझे क्या पता कौन सा गीत है Somesh Sibalji is still watching us on YouTube. Thank you, Somesh. आप उधर हैं, and it's very nice.
जब दोस्त ज्वाइन करते हैं कार्यक्रम को और सपोर्ट करते हैं बाय वॉचिंग एंड बाय पुटिंग सम कमेंट्स देयर. थैंक यू सोमेश. सोमेश, वी नीड टू टॉक सून. आई हैव एन आइडिया और हम लोग बात करेंगे 1-2 दिन में. सो थैंक यू फॉर दैट. पूजा सेजवाल जी क्या कह रही हैं? पूजा सेजवाल जी कह रही हैं कि हर पल यहाँ जी भर जियो समा कल हो ना हो. ब्यूटीफुल. दैट्स अनदर ग्रेट सॉन्ग सोनू निगम का, कल हो ना होगा. सो यस, एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल सॉन्ग. एंड पूजा सेजवाल अगेन बाबुल दा वेड़ा. एंड नीरज नंदा जी कह रहे हैं वाह वाह. एंड पूजा सेजवाल अगेन तेरी मिट्टी में मैं मिल जावा. दैट्स अनदर ग्रेट सॉन्ग. वो कौन सी फिल्म थी? तेरी मिट्टी में मिल जावा. That's a beautiful song, and it just reminds me of India, and beautiful. Yeah, beautiful song. So thank you, Pooja ji, for reminding us of all these beautiful songs जो दिल के अंदर एक कुछ आपको याद सा दिलाते हैं, कुछ दर्द भी आती. कसमें वादे प्यार वफा सब. Absolutely, this is a great song. कसमें वादे प्यार वफा सब. ये कौन सी फिल्म थी? मन्ना डे का गीत है ये. एंड कसमें वादे प्यार वफा सब, बातें हैं बातों का क्या. ये थी पवित्र पुजारी, पवित्र पापी. आई थिंक बस पवित्र पापी का थी. नानक सिंह की नॉवल है ये, पवित्र पापी. आई थिंक उसका है. एंड अतीब डंग कह रहे हैं जब दर्द नहीं था सीने में. एब्सोल्युटली. अनुरोध का गीत, किशोर कुमार. इस फिल्म पे राजेश खन्ना और विनोद मेहरा थे. एंड उसके गीत एक से एक बढ़िया. सो कल्याण जी, आनंद जी की म्यूजिक थी उसमें. एंड इट वाज अ ग्रेट मूवी अनुरोध. उसका टाइटल सॉन्ग एंड इट वाज जस्ट अमेजिंग. पूरे फिल्म के गीत थे. दे वर रियली रियली ब्यूटीफुल. जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, प्लीज़ अपने दोस्तों को इस कार्यक्रम के बारे में बताइए कि भाई बड़ी मीनिंगफुल इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशंस होती हैं. उपकार का था, करेक्ट अतीफ. यस, उपकार का. कसमें वादे प्यार वफा सब. उपकार मनोज कुमार की फिल्म थी. थैंक यू. प्लीज़ अपने दोस्तों को बताइए इस कार्यक्रम के बारे में. ये बताइए कि हम कुछ कोशिश कर रहे हैं, अच्छा कंटेंट. एंड वी आर एमेच्योर रेडियो स्टेशन. कोई हमारे पास में बड़ी टीम नहीं है, पैसे नहीं है, बट ये हम लोग खुद के प्यार से जो कंटेंट बनाते हैं, लेके आते हैं आप तक, और जो हमारी कम्युनिटी के लोग जुड़ते हैं एंड उनकी जो कमेंट्स और जो कंट्रीब्यूशन होती है, उससे कार्यक्रम में ज़्यादा खूबसूरती लगती है. तो आप लोग प्लीज़ अपने दोस्तों को बताइए एंड डू कीप लिसनिंग. और अभी आई एम गोइंग ऑफ एयर on 89.3 FM 2GLF. I'll be live on Facebook for another few minutes and on YouTube. फिर उसके बाद में गुड नाइट हो जाएगा.
आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए और मेरी इस क्रू की आवाज़ को भी झेलने के लिए. हैव अ गुड नाइट, टेक केयर, बी गुड, लुक आफ्टर योरसेल्फ.